हाँ जी मैडम, आज तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, की तुहाडा कहना इस बारे? सर एक्चुअली मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बिहाफ ते कर रही हूँ। सारिਆਂ ਨੂੰ पता है मैं पॉक्सो केस ਦੀ विक्टिम हाँ कपूरथला केस ਦੇ ਵਿੱਚ। मेरा केस सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। रीसेंटली मैं उस केस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा थ्रेट्स भी आते, धमकियां भी आंदियां कि मैं केस वापस ले ला। मेरे ओपोजिशन वालों वालों राजीनामे लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है। ऐसे रिलेटेड ही मैं एक एप्लीकेशन 21 अप्रैल ਨੂੰ सिटी थाने ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਰਾਜੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਰੋਜ਼ੀ ਬਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਸ਼ਾ ਐਂਡ ਜੇਟਲੀ ਐਰੀ। ਆ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪੂਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਲਈ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ। जद कि उस टाइम मेरे फादर नूं मुहल्ले वाले जो इकट्ठे हो गए रोला पै के उन्होंने सिटी थाने लैके जाया गया सी, एप्लीकेशन दी, FIR दर्ज हुई। उस तो बाद सर बंदे भगौड़े। पहली गल प्रशासन ने उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। चलो असी एक अपना मैटर रखता साइड ते। सेकेंडली रीसेंटली कपूरथले दे विच कतल केस हुंदा आ, जिहदे विच सेम आही बंदा राजू शर्मा, कतल केस सारिਆਂ ਨੂੰ पता आ, जतिंदर धनीए दा जिहड़ा कतल केस होया ते सेम FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਫਿਰ ਆਹੀ ਕਲਪਰੇਟ ਆ, ਆਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਨੀ ਆ, ਈਵਨ ਆ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਰ ਕੱਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਬੰਦਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਾਇਰਸ, ਈਵਨ ਗਾਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ SP ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, SP ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ, SP ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਓ, ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਏ, ਬਿਆਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਐਦਾਂ ਲਿਖਣੀ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਉੱਦਾਂ ਲਿਖਣੀ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਲਾਇਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਾਇਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਸਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਏ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਰੋਜੀ ਬਾਲਾ, ਆਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੈਕਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਭਗੌੜਾ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਐਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਰੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰੈਕ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਇਰ ਤੱਕ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਤੇ ਅਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਫੋਨ ਤੋਂ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਐਂਡ ਭਗੌੜਾ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲਸ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਪੂਰਥਲੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ, DSP ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਏ ਆ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਸਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਇੱਕ ਕਤਲकांड ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਭਗੌੜਾ ਆ, ਜੋ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਆ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪਾਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੌਕਸੋ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ
सुनवाई नहीं की सर, बिना पॉइंट दे बिना भी हाफ से कितना कोई कर लूगा, साढ़े को सारे एविडेंस है। प्रॉपर सुनवाई इस केस में की गई थी, यहाँ के सारे डिपार्टमेंट ने इसकी सुनवाई करी, सुनवाई करके सबमिट हुई है ऊपर रिपोर्ट की, भाई कोई ऐसी तरीके की चीज नहीं पाई गई। वो ही सेम डेट जिस दिन इस विक्टिम का मेन पॉस्को केस की जिस डेट में बयान होने थे, जिस जगह पे कोर्ट की डेट है, उसी दिन उनका भी फोन आता है कि आपको होशियारपुर में आपकी भी डेट है। सेम डेट पे एक आदमी दो जगह कैसे जा सकता है? दूसरी चीज, एक आदमी हत्या करके जिसको यहाँ की पुलिस कह रही है कि वो गायब है, फरार है, वो बंदा यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाके पुलिस प्रशासन के बीच में विद सीसीटीवी फुटेज के साथ वो बंदा बयान दे करके वहां से निकल जाता है, और वो कहते हैं कि जी हमको तो इसका नॉलेज ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप बताइए कि कोई किसी का हत्या करके, हम बोलते हैं हमारा केस एक तरफ है, एक साइड है। उसके बाद इस केस से भी रिलेटेड मैं आपको बताऊं, जब ये हमारे साथ ये वारदात हुई थी, हमने बार बार जाकर के थाने में या पूरे सारे अधिकारियों के बीच में ये बात बोली थी कि इनका षड्यंत्र, इनका प्लान कुछ इस तरीके का है, क्योंकि कुछ वीडियोस जो हमने निकाली थी उसमें वो प्रॉपर बोल रहा है कि उन्होंने मरना है, इन्होंने मारना है। वो फुटेज हमने प्रॉपर सबमिट करी है सरकार को, उसके बावजूद उस पर इतनी डिनाई किया गया, और उसके 10 दिन के बाद ही जितेंद्र सहगल का हत्या हो गया। उसके हत्या के बाद में ये बंदा गायब है, प्रॉपर मिल रहा है। बोले फोन ट्रैप में लगा हुआ, फोन जैसे ही चालू होगा वो फोन के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा है रीडर को, मतलब फोन भी ऑन कर रहा है। सरकार उसको बोल रही है कि जी वो तो मिल नहीं रहा है, गायब है। वो प्रॉपर जिस जगह पर है, हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है दिल्ली में बैठा ली है। हमने कल प्रॉपर दिल्ली में इसकी सारी रिपोर्ट सबमिट करी, हमको दिल्ली बुलाया गया है, और हम इसकी जांच, हम यहाँ की प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इस बंदे को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, क्योंकि इस तरीके के व्यक्ति जो बाहर घूम रहे हैं, जिन्होंने एक हत्या कर चुके हैं, क्या प्रशासन ये चाह रहा है कि दूसरा कुछ ऐसी चीजें हो जाए? यहाँ इंसान की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं। कोई ये तो ये बोल रहे हैं हमको मिल नहीं रहा। उनका जो लिंक है वो पॉलिटिशियंस के साथ भी, राजू का लिंक है, ऊपर ऊपर अधिकारियों के साथ भी लिंक है। हम तो फिर ये मान ले कि प्रशासन एक दोषी का साथ दे रहा है। सबसे पहली चीज सर, मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला हूं आज। मैं अंदर आया हूं आपके ऑफिस में, एसपी साहब के पास जब मैं पहुंचा होशियारपुर, एसपी साहब का पहली चीज तो किसी के साथ हम सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, सत श्री अकाल करते, बैठते हैं। उनकी स्टार्टिंग जो थी, मेरे को तो किसी का फोन नहीं आया, अच्छा हुआ आपने किसी का फोन नहीं लगवाया। ये कौन सी बात होती? हम वही समझ गए थे कि इनको ऊपर से फोन आ चुका है। इन्होंने हमारे सामने, हमारे वकील के सामने बैठे बैठे हमारे फादर इन लॉ को बयान में घुमाने की कोशिश करी। हमारे वकील ने बीच में बोला, जी कोई बीच में नहीं, आप बताइए वकील को कोई रोक सकता है बोलने से? बोले आप बीच में नहीं बोलेंगे। ऊपर से पेपर में तक फोटोज आई हैं, लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब ये बंदे ने मर्डर किया है, इतना बड़ा। ये देखिए सामने से फोटोज हैं, हत्यारों की फोटोज है, फोटोज दिखा, ये देखो, ये बंदे की साफ न्यूज़पेपर में फोटो आई है राजू शर्मा की, एंड ये कहा जा रहा है जी हमें ये मिल नहीं रहा। प्रशासन की मेरा क्या, प्रशासन सुता हुआ है या फिर, या प्रशासन चाहता है एक और इंसिडेंट ऐसा ना हो जाए फिर ऐसी कोई एक्शन ना मांगे। तो इसके लिए हमने जो आपसे, आपके साथ हमारा कन्वर्सेशन करने का मतलब सिर्फ इतना सा ये है कि हम प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस केस की गहराई से जांच पड़ताल की जाए, क्योंकि इस तरीके का व्यक्ति जो एक हत्यारा है, जो खुला घूम रहा है, और कहीं दूर भी नहीं कि 250, 300, 500 किलोमीटर दूर बयान देके जाता है, आपकी कॉर्नर में बयान देके चले जाता है, आपकी लोकेशन। किस डेट को बयान हुए हैं बता सर? आज तारीख है 23, उसके हुए 22 तारीख को बयान सर, 21 तारीख को हुए सर, 21 तारीख को। और सर अगर ये बोलते हैं कि बयान नहीं हुए हैं, जिस जगह पर बयान हुए वहां पे प्रॉपर सीसीटीवी फुटेज है। हालांकि हम इंक्वायरी इसकी दिल्ली से लगा रहे हैं, उसकी सीसीटीवी फुटेजेस जब निकलेगी आपको दिख जाएगा। और उन्होंने खुद कहा कि बहुत जल्दी में आया, 3 मिनट के अंदर उसने फटाफट बयान दिया, चला गया। मतलब आपको पता था कि मैं एक अधिकारी के सामने जा रहा हूं और बोल रहा हूं जल्दी जल्दी बयान ले लो, एक अधिकारी मेरे हिसाब से चलेगा? आप बताइए, चलेगा? किसी की अप्रोच आती है ऊपर से, किसी का लिंक आता, तब जाके फटाफट काम होता है। इस तरीके की चीजें, और पुलिस कहती है जी हमको तो पता ही नहीं। जब हमने वहां से इन्फॉर्म किया, हमने वहां बयान रिकॉर्ड नहीं कराया, क्योंकि हमारी जहां से दिल्ली से हमारा केस ऑपरेट होता, हमने वहां इन्फॉर्म किया, उन्होंने कहा आपने वहां बयान नहीं देना है, हम यहां से जांच के आदेश अभी निकालते हैं। इसकी सारी की सारी जानकारी प्रशासन के पास है नहीं है हम नहीं जानते, लेकिन हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारी जो बात है प्रशासन तक पहुंचे,
और वो जागरूक हों और वो ढूंढें कि ये व्यक्ति जो अपने घर में है या अपने शहर में है वो ही जानते हैं। ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ तक भी अप्रोच करोगे? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे सर, Even बिल्कुल। sir, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਐਫਆਈਆਰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਐਫਆਈਆਰ ਕੱਟੀ ਜਦੋਂ मैं डीजीपी पंजाब से 8वें दिन एफआईआर कटी है सर, 8वें दिन जिसके साथ हमला हुआ हो और ये देख परख के हुआ हो कि इसके घर में कोई नहीं है, तब उसके ऊपर जाकर के हमला कर रहे हैं और ये बोला जा रहा है कॉम्प्रोमाइज को लेकर के। रात में 1:30 बजे जाकर के एक विक्टिम जिसका घर से निकलना प्रशासन की तरफ से मनाही है, वो 1:30 बजे थाने में जाकर के एप्लीकेशन देती है। वो बोलते जी वो तो भज गया, ढूंढ रहे हैं, मिला नहीं, जमानत ले लिया। 10वें दिन मर्डर कर देते हैं, फिर भी घूम रहे हैं, फिर जाकर के उल्टी इंक्वायरी बिठलवा रहे हैं किसी दूसरी जगह पर जाकर। सर कौन सा अन्याय हो रहा है? एंड सर ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਫੋਨ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ।